Now, as we have discussed about feedback loops and iteration, we will move to the types of feedback loops which we can apply and run to, get the inside information of our product. When I say inside information, that the feedback from consumer and how it's going to work and what iteration are required. So all get all this inside information of our own product. It is very important to create feedback loops. What we have discussed in our last slide, we understood the importance and significance of this point. And again, I'm repeating myself again and again that feedback loop and iteration is something which is not only for MVP of types, it is for the mature product as well, right? But here we are discussing on the context of MVP and prototype. So first one is the user feedback loop qualitative. So first of all, let's understand the difference between qualitative and quantitative so that you know when we'll discuss in detail, it won't confuse us. So qualitative is something which is subjective, which cannot be measured in numbers. It is more about the experience and detailed description. And when we say quantitative, it's always in the numbers. So you can do the more analysis, you can find out the patterns or something. So this is a basic difference between qualitative analysis and quantitative analysis. And when we'll discuss about the types of feedback loops and iteration, then there are majorly three. One is user feedback loop for qualitative, behavior feedback loop quantitative, and internal feedback. Right. So we will discuss all these types one by one to understand this particular segment a little better. And again, this is a very good opportunity that if you are doing that assignment practically, which we have discussed at the end of our module two, if you are still doing that, then this point would really helpful to you, and you can create a very practically a market based feedback technique, right? So one is user feedback loop qualitative. Conduct interviews, watch usability tests. We have discussed that. Interview conduct, Zoom call, Teams call, you can do that, right? You can reach out to your customer directly, then set up a call with them and then watch usability test. Usability, convenience, we have discussed about that. How's the interface, how they're liking it, it's easy, ease of useness of anything, right? So again, प्रोडक्ट अगर आप इंटरफेस अच्छा आप किसी भी साइट का ऐप का इंटरफेस अच्छा है किसी भी प्रोडक्ट को चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट आप इजीली यूज कर पा रहे हो तो वो आपको एक जो फीडबैक मिलेगा उससे आपको सपोर्ट होगा कि आप इसमें कौन से फीचर ऐड और रिमूव कर सकते हैं, राइट? जब आप इंटरव्यू लेते हो कॉन्टैक्ट इंटरव्यूज का मतलब जब आप उनसे टीम्स कॉल पे जूम कॉल पे आप फेस टू फेस भी मिलोगे तो आपको इमोशन समझ में आते हैं कि ओके दिस पर्सन इज फाइंडिंग इट गुड, इफ नॉट देन व्हाट्स द रीजन। कलेक्ट फीडबैक वाया जब हम सर्वे पे या ईमेल फीडबैक करते हैं हमारे पास काफी सारा डेटा होता है तो देन वी कैन डू द कंपैरिजन एज वेल, राइट? व्हाइल वी डू द क्वालिटेटिव फीडबैक वी कैन डू द कंपैरिजन एज वेल। ओके कि इन 10 लोगों ने बोला इन 10 लोगों ने बोला एंड द very important factor here is which is usually not usually I would say not usually but some of the entrepreneurs ignore is the diversity, because when we say diversity does not only mean female, diversity means that वो कहते हैं ना हम स्कूल में पढ़ते थे अनेकता में एकता। We have a very diverse nation। हमारा प्रोडक्ट एक साउथ में भी जा रहा है, नॉर्थ में भी जा रहा है, ईस्ट में भी जा रहा है। अगर हम हमारा मोटिव है कि हम उसको एक पैन इंडिया प्रोडक्ट बनाएं तो वहाँ की ज्योग्राफी अलग होगी, कल्चर डिफरेंसेस होंगे, वहाँ की एक्सपेक्टेशन अलग होगी, यहाँ की रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो क्या वो न्यूट्रल है ना? जब हम उस लेवल पे जाते हैं, तब हमको समझ में आता है कि ठीक है, हमारा प्रोडक्ट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और जब हम उस लेवल पे जाते हैं, तो हमको कंपैरिजंस भी रन करने पड़ते हैं कि यार इस मेरा जो प्रोडक्ट है, ये नॉर्थ में ज़्यादा बेटर कर रहा है, साउथ में ज़्यादा बेटर कर रहा है, ईस्ट में ज़्यादा बेटर कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो ऐसे फीडबैक जब आपके पास आते हैं तो आप क्या करते हो कि यार ठीक है नॉर्थ में ओके है क्या साउथ के लिए क्या हम ये चीज कर सकते हैं, शायद पैकेजिंग काम कर दे या इसके लिए ये चीज ऐड कर दे रिमूव कर दे। सो दैट्स हाउ you can customize the product as well as per region। यूजुअली दिस इज अ वेरी कॉस्टिंग है, कॉस्ट इस पे कॉस्ट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। या तो आप ये करते हो या फिर आप ये करते हो कि किसी तरीके से एक न्यूट्रल ग्राउंड को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है फॉर एनी एंटरप्रेन्योर और एनी बिजनेस।
जो मैंने पहले आपको बताया था वो एक ऑप्शन है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट कंज्यूमिंग है, उसमें कस्टमाइजेशन में हमने डिस्कस किया है पीछे, राइट? लेकिन ये वाला जो पॉइंट है जो कि लार्जली हर एंटरप्रेन्योर करने की कोशिश करता है कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि बैलेंस बनाते हैं सो दैट कि हर रीजन में हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल। उसके लिए क्वालिटेटिव जो फीडबैक है इट्स मस्ट, मस्ट। क्योंकि क्वांटिटेटिव से आपको नंबर पता चलेंगे, क्वालिटेटिव से आपको उसके पीछे का एक्चुअल रीजन पता चलेगा। नॉर्थ में मेरा 10 में से 5 लोग कह रहे हैं मेरे को ये सामान लेना है, साउथ में कह रहे हैं 8 लेना है, ईस्ट में कह रहे हैं 2 ने लेना है। क्वांटिटी में आपको ये नंबर पता चल गए, क्वालिटेटिव में आपको पता चलेगा क्यों। और जब आपको क्यों मिल गया ना, तो आप ये कोशिश करोगे कि मैं अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से आइटरेट करूं, उसकी आइटरेशन इस तरीके से करूं कि वो ना हर रीजन में 5-5 लोग कहने लग जाएं कि लेना है, 6-6 लोग कहने लग जाएं। 1-2 का वेरिएंस चलेगा कि साउथ में 10 में से 7 कह रहे हैं, नॉर्थ में 10 में से 8 कह रहे हैं, ईस्ट में 10 में से 8 कह रहे हैं, मेरा काम हो गया। वेस्ट में 10 में से 6 कह रहे हैं, मेरा काम हो गया। वो बैलेंस मेंटेन हो गया। That's why qualitative feedback loop is very, very important. Use this to learn why users behave in certain way, जो अभी हमने डिस्कस किया। जब तक हम why को फाइंड आउट नहीं करेंगे ना, we always remain in confusion, right? Then behavioral feedback loop जो हम था, अब आ गया क्वांटिटी, जहाँ पे नंबर्स की गेम है। ट्रैक करते हैं हम कि अच्छा ये इतने लोग जा रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं, ये ले रहे हैं, इस ज्योग्राफी के ज्यादा ले रहे हैं, इस जेंडर के ज्यादा ले रहे हैं, इस एज ग्रुप के ज्यादा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्यू का पता तो आपको क्वालिटेटिव में लग गया, लेकिन अब जब आपको नंबर्स मिल गए तो आपके लिए इजी हो गया, थोड़ा सा और इजी हो गया। आप इसकी एनालिसिस कर सकते हो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था एट्रिशन कंट्रोल करने के लिए कि जो लोग एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया था हमने उनको अगली बार से एजुकेशन वाले लोग रखने लगे, तो कंप्लीशन वाले लोग रखने लगे, तो हमारा एट्रिशन कंट्रोल हो गया। दैट वन थिंग वी हैव डिड, राइट? वी हैव डिस्कस। एंड सिमिलरली people who are from the outstation, right, for them the paycheck was less, so that's why they were leaving the job. So we'll try to find out local people, right? Similarly, when you have numbers you can do such analysis, right? Look at the patterns, where is drop, where is... see, uh, I'll tell you, uh, uh, see, आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्टेंस हो जाना इज वन थिंग, रिपीट एक्सेप्टेंस होना इज अनदर थिंग। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जब तक आपका रिपीट कस्टमर नहीं होगा, टिल द टाइम यू विल नॉट गेट द रिपीट कस्टमर, योर प्रोडक्ट सक्सेस इज ऑलवेज ऑन टॉस। एक्सेप्ट करिए इस फैक्ट को, रिपीट कस्टमर होना बहुत जरूरी है। जितना रिपीट कस्टमर होगा, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कि रिपीट कस्टमर बहुत कम होते हैं या फिर बहुत समय के बाद आते हैं, जो कि लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट होते हैं। उन वाले प्रोडक्ट्स में रिपीट कस्टमर का जो आना होता है वो मतलब चांसेस कम है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि मोबाइल फोन है, ये एक ऐसा है जिसमें फ्रीक्वेंट रिपीट कस्टमर नहीं हो सकता। मैंने एप्पल का फोन में यूज कर रहा हूँ, मेरा इसमें ट्रस्ट है। शायद 2 साल बाद, 3 साल बाद जब मैं दोबारा लूंगा, मैं एप्पल का ही फोन लूंगा, मैं हूँ रिपीट कस्टमर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं डेली जाके एप्पल का फोन ले रहा हूँ या हर हफ्ते ले रहा हूँ। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, वो अंडरस्टैंड है, तो हम उस चीज में नहीं जाएंगे। बट व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज दैट इफ यू सेलिंग अ प्रोडक्ट और यू आर गिविंग एन एक्सपीरियंस टू एनी कस्टमर, लाइक अगर आपकी ट्रैवल वेबसाइट है, आपकी शॉपिंग वेबसाइट है, आपकी आप वेबसाइट पे इवेंट्स कर रहे हैं, टिकट बुकिंग हो रही है और लोग बार बार आपकी साइट पे आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपका रिपीट कस्टमर है। लेकिन अगर वो एक बंदा आया, उसने आपके वेबसाइट से कपड़े खरीदे, फिर उसके बाद वो दूसरी वेबसाइट पे चला गया, तो वो रिपीट नहीं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो आपको ये डिफरेंस भी अंडरस्टैंड होना जरूरी है। दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा लीक से हटके आपको एक ये अंडरस्टैंडिंग दी है। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट दैट क्वांटिटेटिव, दैट यू शुड नो द नंबर्स, राइट? यूज दिस टू फाइंड आउट यूजर्स, दैट व्हाट यूजर्स आर डूइंग और नॉट डूइंग। वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका आपको नंबर पता चल जाएगा। क्यों कर रहे हैं वो हमने क्वालिटेटिव में आइडेंटिफाई कर। देन इंटरनल फीडबैक लूप, इंटरनल भी तो चाहिए अपनी टीम के साथ, जो हमने पहले डिस्कस किया था, है ना? वीकली टीम हो रही है, तो आप प्रोडक्ट के रिव्यूज कर रहे हो, बैठे हो यार अच्छा इसमें क्या है, खुद भी करते हो ना क्रिटिकल। मैंने कहा था बी क्रिटिकल अबाउट योर प्रोडक्ट, डोंट बी हार्श। बीइंग क्रिटिकल एंड being harsh is two different things. Give pat on the back to yourself, but you cannot be harsh to yourself, so just be critical.
राइट? क्रॉस फंक्शनल चेक, सारी टीम्स बैठी हैं, हडल हो रहा है, टीम मीटिंग्स हो रही हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम हमको लगता है कि अब एनालिसिस टीम आती है, वो कहती है कि हमने ये फाइंड आउट किया। डेवलपमेंट टीम आती है कि आपने ये जो फाइंड आउट किया ये मैं फिक्स कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को इतना समय चाहिए। फिर कैश फाइनेंस टीम आती है कि अगर आपने इतने समय में कर दिया, मैं इसका एक छोटा-सा आपको तुरंत फटाफट से एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे देता हूँ। आपने ग्लासेस बनाए, आपका जो क्वालिटेटिव जो फीडबैक आया काफ़ी अच्छा आया। लोगों ने कहा कि हाँ, हमको पसंद है, हमारी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो रही है इस मटेरियल से, एग्ज़ाम्पल है। अब आपने क्वांटिटेटिव किया और उसमें समझ में आया कि एक जगह पे नंबर ज़्यादा है, एक जगह पे नंबर कम है, और क्वालिटेटिव में कुछ लोगों ने बोला कि अगर आप इसमें कलर चेंज कर दो या कुछ और एडिशनल कर दो, ये पीछे रबड़ वगैरह लगा दो तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है? समझते हैं। अब हम अब अपने इंटरनल उसमें बैठे हैं, तो मैंने अपनी टीम से कहा कि यार सब कुछ अच्छा है, वो कह रहे हैं इसमें ना रबड़ भी लगा सकते हैं क्या? तो मेरी एनालिसिस टीम आती है और वो कहती है कि सर रबड़ लगवाने वाले जो लोग हैं ना वो कम है, लेकिन जो कह रहे हैं ना कि कलर चेंज कर दो वो ज्यादा है, तो पहले हम वो कर दें। मैंने कहा ठीक है, पहले वो कर देते हैं। तो मैंने अपनी प्रोडक्शन टीम से कहा, तो मेरी प्रोडक्शन टीम कहती है कि सर हो जाएगा, लेकिन इसको करने में कम से कम हमको 10 दिन लगे। अभी मेरी फाइनेंस टीम आती है, वो कहती है कि अगर आपने 10 दिन में कर दिया तो ठीक है, जैसे ही 11वां 12वां 13वां दिन हुआ तो हमको ना कॉस्ट एडिशनल लगेगी, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट जाएगा नहीं तो रिवेन्यू नहीं आएगा, रिवेन्यू नहीं आएगा तो ये साइकिल चलेगी नहीं। दिस इज वन क्लासिकल एग्जांपल, वेरी सिंपल येट एबल टू यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इंटरनल फीडबैक लूप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर टीम सिट्स टुगेदर, दे डू द वीक, कहते हैं इसको वीकली बिजनेस रिव्यू, है ना? we WBR, and then we say monthly business review, MBR, and then quarterly, half yearly, yearly strategies बनती हैं। Why? Because it is important. फीडबैक आ रहा है, हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर काम कर रहे हैं, फिर हमने आइटरेशन किया, है ना? जब हम ये सारी साइकिल बहुत स्मूथली चलाते हैं, then as an entrepreneur, we can say that yes, we are ticking all the box. सो यूजर फीडबैक लो क्वालिटेटिव, जहां पे सब्जेक्टिव, जहां पे हमने सीखना है व्हाई यूजर्स बिहेव इन अ सर्टेन वे, बिहेवियर फीडबैक लूप। क्वांटिटेटिव, जहां पे हमारे पास नंबर्स आएंगे, यूज टू फाइंड आउट व्हाट यूजर्स आर डूइंग और नॉट डूइंग, क्यों और क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एंड देन इंटरनल फीडबैक लूप, उन दोनों फीडबैक को जब हम यूज करेंगे अपने इंटरनल उसके लिए, और हम खुद भी कर सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो फीडबैक हमारे पास आए तो ही हम ये करें, ये हमको करते रहना है, करते रहना है, राइट? टू कीप द टीम अलाइन्ड एंड रिस्पॉन्सिव, एंड रिपीट वीकली और बाई वीकली, एंड डोंट वेट टिल प्रोडक्ट इज रेडी। जो मैंने अभी बोला लास्ट में, अभी बोला, इंटरनल फीडबैक लूप एक ऐसी चीज है जो डिपेंड नहीं है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फीडबैक के ऊपर, वो आप खुद भी रन कर सकते हैं। अगर आपको बाहर से फीडबैक अच्छा भी आ रहा है तो भी आप खुद भी रन कर सकते हैं, करना चाहिए। उससे टीम अलाइन रहती है, रिस्पॉन्सिव रहती है, और आपको एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी, सेंस ऑफ रियलाइजेशन रहता है। उसके अलावा जैसा मैंने लिखा है, डोंट वेट टिल प्रोडक्ट इज रेडी। करते रहिए, करते रहिए, जब तक प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाता करते रहिए, और जब मार्केट में चला जाए तो भी करिए। ओनली देन यू विल बिकम अ सक्सेसफुल entrepreneur. So by this we'll end up this session as well, and in next module we will learn about go to market strategy and launch planning. इंटरेस्ट आ रहा है, क्यूरियोसिटी हो रही है, जा रहे हैं मार्केट में, जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना? कितना काम किया देखो अभी तक। और याद रखो जो मैंने मॉड्यूल 2 के एंड में कहा था, प्लीज 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 ट्राई टू गेट योर सेल्फ एंगेज इनटू प्रैक्टिकल लर्निंग with your friends and your family. Okay, so now we will discuss about go to market strategy and launch planning. Okay, entrepreneurs,